Assalamu alaikum. Today we are here with another class of financial management, and today we will discuss the valuation of preferred stock and common stock. Continuing the last lecture where we discussed the valuation of bonds, different types of bonds, that was zero coupon bond or consols and some other types of bonds. So let's see how we'll discuss the valuations of a common stock, how we calculate the value of a common stock. So let's start with this concept. Okay, that means all of you here, I think. Okay. So we will discuss here today the preferred stock valuations. Let me explain what is preferred stock. Preferred stock is a kind of securities which promises a fixed dividend, but at the discretion of the board of directors. There is a little bit difference between the common stock and preferred stock. Preferred stock, also known as hybrid financing instruments in finance, we call them as a hybrid financing because it it has some matching with bonds and also it have some matching with the common stocks. So that's why we call it is as a hybrid finance. The preferred stock has a preference over common stock in the payment of dividends and claims on the assets. When the firm is going to be liquidated, so the preferred stock will be given a preference upon the liquidation of the assets. However, the main difference between the common stock and the preferred stock is that the preferred stock has no voting rights at all, unlike the common stock. Common stock holder have the ownership rights in the firm, as well as they have the voting rights in electing the board of directors, while this facility cannot be enjoyed by the preferred stock holder. This is the main difference between the preferred stock and the common stock. Okay, let's see how we calculate the valuation, how to assign a value to the preferred stock in the market. The formula is very simple. We'll take the dividend of last dividend paid on the preferred stock, and this last dividend paid by the on the preferred stock by the firm will be divided on the required rate of return by the investor, that is KP. So the formula is very simple. V is equal to D divided by KP. Dividend P means the dividend paid on preferred shares, the last dividend paid. Whatever be the latest dividend we have of the firm, we'll take it, the value of that dividend, and we will divide this value by the required rate of return by the investors. And I already discussed what is the difference between the required rate of return. It usually differ from economy to economy, it differ from investor to investor, even it differs for an investor from one company to another company, whatever I am already learned in detail. Let's take an example how we calculate dividend. Here is an example. Stock PS has an 8% dividend, $100 par value issue outstanding. The appropriate discount rate is 10%. What is the value of the preferred stock? So here one thing is given, that is the face value of the preferred share, that is $100. Now, and dividend on that preferred share is 8%. Okay, this 8% is given here, and the discount rate is required rate of return by the investor. Means कि जो इन्वेस्टर इस प्रेफर्ड शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है वो कितना रिटर्न कमाने की चक्कर में है. सिंपल इज दैट. बहुत आसान सी बात है
कि एक इन्वेस्टर जब प्रेफर्ड शेयर में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो जाहिर है वो रिटर्न के लिए कर रहा है, तो उसको कितना रिटर्न चाहिए, कीपिंग इन माइंड रिस्क लेवल, कीपिंग इन माइंड इकोनॉमी, कीपिंग माइंड इन द सिचुएशन इन इकोनॉमी, बहुत सारे फैक्टर्स को देखकर वो जहन में एक रख लेता है कि हाउ मच रिटर्न शुड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग हियर। सो वो जो एक्सपेक्टेशन रख रहा है वो दैट इज 10%। सो इस इलस्ट्रेशन में से हम दो चीजें निकालेंगे, नंबर वन डिविडेंड ऑन द प्रेफर्ड शेयर, और नंबर टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर। सो डिविडेंड हम कैसे निकालेंगे? डिविडेंड निकालने का तरीका ये है कि फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे उसके dividend rate से, and dividend rate is here 8%. So dividend is equal to $100 is the face value, is 8% of the $100 is $8. So it means $8 is the dividend on preferred share. Okay, dividend on the preferred share. Let me join these two students. Okay, now the KP is here 10%. The KP means 10% required rate of return from the investor, that is 10%. So V is equal to dividend divided by KP. D is $8, KP is 10%. So D divided by KP, 8 divided by 10% is $80. It means इस प्रेफर्ड शेयर की जो इन्वेस्टर मार्केट में कीमत लगा रहा है वो कितनी लगा रहा है? $80 लगा रहा है. So it means the investor will be ready to buy that preferred share for $80. अगर ये प्रेफर्ड शेयर मार्केट में $80 या इससे कम पे मिल रहा है तो इन्वेस्टर डेफिनेटली इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, बाय करेगा. और अगर ये $80 से अबव जा रहा है, $85 या $90 पे ट्रेड हो रहा है, बिक रहा है, सेल हो रहा है, तो ये इन्वेस्टर उसको खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं रखेंगे, क्योंकि उनके माइंड में एक प्राइस आ गई है और ये प्राइस उनकी माइंड में आई है उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से. आई होप दिस इज clear. This is the case of the preferred share. Now come towards the very important aspect in the valuation of long-term security. Long-term security तीन किस्म की होती हैं. Number one bond, number two preferred share, and number three is the common stock or common share. Most of the important जो तीनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा कॉमन, मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली जो चीज है दैट इज कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक है क्या चीज? लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज कॉमन स्टॉक. कॉमन स्टॉक रिप्रेजेंट्स अ रेजिडुअल ओनरशिप पोजीशन इन द कॉर्पोरेशंस. आई होप मैंने एक स्टार्ट में एक लेक्चर दिया था जिसमें मैंने ओनरशिप राइट्स, ओनरशिप की जो स्ट्रक्चर होता है, पूरी पोजीशन होती है कॉर्पोरेशन सेक्टर में, वो एक्सप्लेन किया था. तो अल्टीमेटली जो कंपनी होती है और कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती है दैट इज होल्ड बाय द कॉमन स्टॉक. सो कंपनी के अंदर जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिसके पास जितने भी शेयर है, 1 शेयर है, 5 शेयर है, 1000 शेयर है, 10,000 शेयर, अल्टीमेटली दे हैव सम ओनरशिप पोजीशन इन दैट कंपनी. Pro rata share of future earning after all obligation of the firm, if any, remains. Basically they have a residual claim. Residual claim से मुराद हम ये लेते हैं कि फर्म जितने अर्निंग ले लेता है, अर्निंग कर लेता है, वो अर्निंग से अपनी तमाम लायबिलिटी, तमाम जरूरियात पूरी कर लेता है. यानी बॉन्ड को होल्डर्स को इंटरेस्ट पे कर लेता है, प्रेफर्ड शेयर होल्डर को प्रेफर्ड डिविडेंड पे कर लेता है. उसके अलावा अगर फर्म की री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो वो कर लेती है. अगर इसके बाद कुछ बच जाता है तो देन वो जो कुछ बाकी बच जाता है वो कॉमन स्टॉक होल्डर को पे किया जाता है, चाहे वो ज्यादा है या कम है या बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट अ मैटर. एनी हाउ दे हैव अ रेजिडुअल क्लेम. उनका क्लेम हमेशा क्या होगा? रेजिडुअल होगा. Dividend may be paid off that pro rata shares of the earnings. जो भी शेयर ऑफ अर्निंग्स होती हैं, pro rata शेयर अर्निंग होती है, उनमें से उनको डिविडेंड पे किया जाता है. ये फिक्स नहीं होता, इट इज वेरी, ईयर टू ईयर वेरी करते हैं, सिचुएशन टू क्वार्टर टू क्वार्टर वेरी करते हैं, फर्म टू फर्म वेरी करते हैं. बेसिकली डिविडेंड जो होता है वो फिक्स नहीं पे किया जाता, वो वेरिएबल किस्म का पे किया जाता है. कॉमन स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे की जाती है? व्हाट कैश फ्लोज विल शेयर होल्डर रिसीव व्हेन ओनिंग शेयर्स ऑफ द कॉमन स्टॉक? जाहिर है
फ्यूचर में उसको क्या क्या मिलता है, फ्यूचर डिविडेंड मिल सकती है एंड फ्यूचर सेल्स ऑफ द कॉमन स्टॉक। जब आप कॉमन शेयर होल्डर होते हैं तो अगर आप उस शेयर को खरीद कर अपने पास होल्ड रखते हैं फॉर 1 फाइनेंशियल ईयर, सो वट एवर बी द डिविडेंड अनाउंस्ड बाय द कंपनी यू हैव टू रिसीव इट, आपको मिलेगी और आप उसको रिसीव करेंगे। सेकेंडली, मार्केट में इसकी प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है। लेट्स से आज अगर आप खरीद लेते हैं एक शेयर 15 रुपए का, 15 रुपीज का, after 1 year maybe the price goes to 25 rupees or 30 rupees per share, so this increase in share price is a cash flow for the investor, उसके लिए कैश फ्लो हो सकता है। साथ साथ एक फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है तो कंपनी अपना डिविडेंड अनाउंस करती है, तो डिविडेंड पे जो कैश मिलती है वो भी उनका राइट होता है कि वो वसूल किया जाता है। बेसिकली दो किस्म के आपके पास कैश, फ्यूचर कैश मिलती होती है, एक डिविडेंड की सूरत में, दूसरा कैपिटल गेन की सूरत। कैपिटल गेन मींस इंक्रीज इन दी शेयर प्राइस इन मार्केट, मार्केट में जो शेयर प्राइस इंक्रीज हो जाती है उससे जो मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल गेन कहते हैं। सो ये दो किस्म की चीजें मिलती हैं। डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल कैसे होता है, बहुत सिंपल सा हम मॉडल लेंगे। सबसे पहले जो मैं मॉडल लूंगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल, दैट इज कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, नो ग्रोथ मॉडल एंड ग्रोथ फेज मॉडल। सो ये 3 मॉडल 3 डिफरेंट सिचुएशन के लिए है। रिमेंबर इट, there are 3 models for valuing a common stock and it applies in different situation। याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट ग्रोथ सबके पे लगे या नो ग्रोथ पे लगे, किसी फर्म की सिचुएशन ऐसी होती है वेयर द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल इज अप्रोप्रिएट। कुछ फर्म ऐसे होते हैं वेयर नो ग्रोथ मॉडल इज अप्रोप्रिएट। जिस फर्म पर कांस्टेंट ग्रोथ अप्रोप्रिएट आ जाएगा उस पर नो ग्रोथ मॉडल नहीं लगेगा। सिमिलरली कुछ फर्म्स ऐसी होती है, उनकी नेचर ऐसी होती है, उनका बिजनेस साइकिल ऐसा होता है, वहां पे ना तो कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल काम करता है ना नो ग्रोथ मॉडल करता है, वेयर ओनली द ग्रोथ फेज मॉडल वर्क्स। सो हम ये 3 किस्म के मॉडल 3 मुख्तलिफ किस्म के सिचुएशन के लिए है। आई होप द पॉइंट इज वेरी क्लियर नाउ टू यू। क्या कहा मैंने कि डिविडेंड को वैल्यू मालूम करने के लिए, कॉमन स्टॉक की वैल्यू मालूम करने के लिए मार्केट में 3 किस्म के मेथड यूज होते हैं, यानी कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल, नो ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ फेज मॉडल। और हर मॉडल की नेचर मुख्तलिफ है और ये डिफरेंट सिचुएशन के लिए अप्लाई होता है। सबसे पहले हम लेते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल लेते हैं। कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल रिमेंबर उस कंपनी पे लगेगा जो कंपनी ओवर द टाइम उसके डिविडेंड में इंक्रीज आ रही है, बट दैट इंक्रीज इज कांस्टेंट, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज आ रही है। फॉर एग्जांपल, हर साल एक फर्म के डिविडेंड में 5% इंक्रीज आ रहा है, 5% इन दिस ईयर, 5% इन नेक्स्ट ईयर, 5% इन नेक्स्ट ईयर, 5% नेक्स्ट ईयर। तो अगर फर्म की नेचर ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि वहां पर हर साल जो डिविडेंड के अंदर इंक्रीज आ रहा है, दैट इज कांस्टेंट, सो वी विल अप्लाई ओनली द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। द कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, D1 डिवाइडेड बाय KE माइनस G। व्हाट इज D1? D1 मीन डिविडेंड पेड एट टाइम 1, लास्ट टाइम जो डिविडेंड पे किया, लेटेस्ट डिविडेंड जो पे किया है, दैट इज द D1। G इज द कांस्टेंट ग्रोथ रेट, फर्म के अंदर ग्रोथ रेट क्या चल रहा है। ये ग्रोथ रेट हम डिटरमिन करते होते हैं, लेकिन यूजुअली इस स्टेज पर हमें गिवन होता है कि वो उस फर्म का ग्रोथ रेट क्या है। अगर हम किसी भी फर्म की एनालिसिस निकालें, स्टैंडर्ड कैपिटल पे चले जाएं या बिजनेस रिकॉर्डर पे चले जाएं, वहां उसको हम खोलेंगे तो उसमें हमें ये कैलकुलेट किया करके दे देते हैं कि इस फर्म का ग्रोथ रेट क्या है, आया ये ग्रोथ रेट कांस्टेंट है या फेजेस में है। अगर कांस्टेंट है तो भी गिवन है, वो हम ले लेंगे। एंड के ऑब्वियसली इज द इन्वेस्टर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, के इन्वेस्टर इस कंपनी के अंदर जब इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो वो कितना रेट ऑफ रिटर्न उसको रिक्वायर्ड है। से एग्जांपल आपके सामने मैंने डिस्प्ले कर दिया, अगर आप इसको पढ़ें आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है।
stock CG has an expected growth rate of 8%. Here is the growth rate G is given, that is 8%. That is 8%. Each share of stock just received an annual dividend of 3.24 per share. जो लास्ट डिविडेंड पे हुआ है that dividend is $3.24 per share dividend. The appropriate discount rate is 15%. यानी जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कॉमन शेयर में, they need 15% required rate of return. How much? Few of them unmute your mic and can come into discussion. जो मैं पॉइंट कर एक दो अब्दुल वहाब एटलीस्ट आप अपना माइक ऑन करें और मुझसे डिस्कस भी करें ताकि मुझे पता चले कि आप सो नहीं रहे, इंटरेक्ट है मेरे साथ. Are you clear? Okay. What is the value of the common stock? इस common stock की वैल्यू क्या होगी? So हम इनमें से दो तीन पॉइंट निकालते हैं. सबसे पहले the last dividend paid. How much last dividend is paid? That is $3.24. ये डिविडेंड जो पे हो चुका है इस शेयर पर, इस कंपनी पर, उसका डिविडेंड रेट कितना है? दैट इज $3.24 पर शेयर. द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट इज 15%. 15% उसका डिस्काउंट रेट है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक? कॉमन स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम D1 निकालेंगे. D1 3.24 है इंटू 1 प्लस जी. जी इज 8%. जी इज ग्रोथ रेट जो कि 8% है. इसको फ्रैक्शन में चेंज किया तो यह है 0.08. 1 प्लस जी. सो हमने 1 प्लस जी 1.08 हो गए. इनको अगर हम दोनों को ऐड करें and this 1.08 is multiplied with 3.24, the answer is 3.5. so जो हमने इस डिविडेंड को ग्रो कर दिया कि अगर ये लास्ट डिविडेंड ये है तो आने वाला फ्यूचर का डिविडेंड जो होगा वो कितना होगा? 3.50 होगा. दैट इज द डिविडेंड इन फ्यूचर, आने वाले टाइम होगा. सो हम D1 को डिवाइड करेंगे KE माइनस G. KE रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इज 15% and G is growth rate that is 0.08. so 3.5 जो डिविडेंड है इधर पुट कर दिया हमने, डिवाइडेड बाय 0.15. 0.15 क्या चीज है? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है इन्वेस्टर का जो कि 15% एंड 15% इज माइनस बाय 0.08. सो अगर हम इससे माइनस कर लिया तो 3.5 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 0.07. 0.15 में से 0.08 माइनस कर लिया तो कितना आ जाएगा? 0.07. सो 0.07 3.5 को 0.07 पे डिवाइड कर दिया, दैट इज $50. इट मींस इस शेयर की मार्केट में क्या वैल्यू होगी? $50. राइट. कितनी होगी? $50 इस शेयर की कीमत होगी मार्केट में. और ये कौन सी कीमत होगी? जो इन्वेस्टर लगा रहा है. इंट्रिंसिक प्राइस होगी, इन्वेस्टर की तरफ से होगी. इन्वेस्टर की माइंड में एक प्राइस होती है कि इस शेयर की या इस चीज की जिसको बाय करना चाह रहा है उसकी क्या कीमत होगी. ऑब्वियसली जो इन्वेस्टर इसको कीमत लगा रहा है दैट इज $50. नाउ अनदर बास कंपनी ऐसी होती है कि उनके अंदर ग्रोथ नहीं होती. हर साल वो फिक्स डिविडेंड दे रहे हैं, जैसे $3, $3, $3, $3. एक ऐसी कंपनी है जिसने 2015 में $5 डिविडेंड दिया, 16 में $5, 17 में ₹5, 18 में ₹5, 19 में ₹5. मींस फॉर द लास्ट 5 ईयर उसने जो डिविडेंड दिया दैट इज फिक्स्ड डिविडेंड. नो इंक्रीज इन द डिविडेंड. इस डिविडेंड के अंदर कोई इंक्रीज नहीं आ रहा. अगर ऐसी सिचुएशन है देन उसकी शेयर की कीमत मालूम करने के लिए जो मॉडल हम यूज करेंगे दैट मॉडल इज नोन एज जीरो ग्रोथ मॉडल. इस कंपनी पर कोई और मॉडल नहीं लगेगा. जो एक ही मॉडल लगेगा दैट इज जीरो ग्रोथ मॉडल. जीरो ग्रोथ मॉडल क्या है? D1 divided by K. D1 mean last dividend paid divided by KE, investor required rate of return. एग्जाम्पल आपके सामने मैं डिस्प्ले कर रहा हूं, जरा पढ़िएगा इसको. स्टॉक ZG has an expected growth rate of 0%, mean no growth. इसके अंदर ग्रोथ नहीं है. Each share of stock just received an annual dividend of $3.24 per share. The appropriate discount rate is 15. What is the value of the common stock? ये एग्जाम्पल जो अभी मैंने की उसमें और इसमें एक चीज का फर्क है.
वो किस चीज का फर्क है? ग्रोथ ग्रोथ का एग्जैक्टली ग्रोथ का है। वहां पे 8% ग्रोथ था, यहाँ पे ग्रोथ कितना है? 0 है। वही 3.24 डिविडेंड है, वही रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% है, बट ग्रोथ नहीं है। तो चेक करते हैं इसकी क्या कीमत लगेगी। द प्राइस ऑफ दिस इज 3.24 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0। 1 प्लस 0, 0 मीन 0 ग्रोथ रेट, इट मीन डिविडेंड 3.24 ही रहेगा। सो 3.24 को डिवाइड करेंगे 0.15 माइनस 0, 0 चूंकि ग्रोथ रेट 0 है तो माइनस कर लेंगे, तो इसकी कीमत लग गई है $21.6। लास्ट की कितनी लगी थी? $50। इसकी कितनी लग गई? $21। यानी पिछले कंपनी की शेयर की कीमत लगाई थी इन्वेस्टर ने $50, इस शेयर की कीमत लगा दी $21। व्हाट इज व्हाई इतना बड़ा डिफरेंस क्यों आ गया? वहां $50 पे कर रहा है एक शेयर के लिए, और यहाँ पे $21 पे कर रहा है शेयर के लिए। दिस डिफरेंस कम्स ड्यू टू ग्रोथ, क्योंकि इस कंपनी में ग्रोथ नहीं है, वहां पे क्या है? ग्रोथ ज्यादा है। जी जी, इज दिस क्लियर नाउ? ओके, लेट्स सी हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हर इन्वेस्टर मार्केट में अपने लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करता है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे कितना रिटर्न मिलना चाहिए। सो इस रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को हम फाइनेंस में यील्ड्स भी कहते हैं। So whenever we talk about yields or required of return, mean these are synonymous words हैं, या हम yield इस्तेमाल करते हैं या required rate of return इस्तेमाल करते हैं। There are 3 steps in calculating the rate required. Determine the expected cash flows. हम सबसे पहली चीज क्या करेंगे? जो फ्यूचर में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, जो कैश फ्लो आने वाली हैं, उसको हम डिटरमिन करेंगे एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितनी आ रही है। रिप्लेस द इंट्रिंसिक वैल्यू विद द मार्केट प्राइस। हम मार्केट प्राइस ले लें, इंट्रिंसिक प्राइस को छोड़ देंगे। जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है शेयर्स की, स्टॉक मार्केट की वेबसाइट पे अवेलेबल है, या बहुत सारे हमारे पास वेबसाइट्स अवेलेबल है, या उस कंपनी की जिस कंपनी को हम टारगेट कर रहे हैं उसकी अपनी वेबसाइट पे उसकी तमाम हिस्टोरिकल प्राइसेस मौजूद होती हैं, हम वहां से उठा लेंगे और यहाँ पे लेंगे। एंड देन सॉल्व द मार्केट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दैट इक्वेट्स द डिस्काउंट कैश फ्लो टू द मार्केट प्राइस। सिंपली हम उसको इक्वेट कर लेंगे उस डिस्काउंट रेट पर जिस पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगी। ये कैसे होगा? इसमें हम फ्यूचर में एक टॉपिक करेंगे, दैट इज कैपिटल बजटिंग, और नेट प्रेजेंट वैल्यू के जरिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे। वहां पे इस पॉइंट को मैं फर्दर क्लियर करूंगा कि वो हम इक्वेट कैसे करेंगे, डिस्काउंट रेट को लेकर मार्केट प्राइस पर इक्वेट कैसे करेंगे। एनी हाउ, वेरी सिंपल फार्मूला। अगर आप टेबल के जरिए जाएं तो हम इंटरेस्ट निकाल देंगे, इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन्युटी एट अ गिवन रेट एट अ गिवन टाइम प्लस मेच्योरिटी वैल्यू इनटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर इनटू केडी इनटू एन। ये टेबल नंबर 4 से कैलकुलेट करेंगे और ये टेबल नंबर 2 से कैलकुलेट कर देंगे। सो टेबल नंबर 2 से ये वैल्यू ले लेंगे, इन दोनों को आपस में हम एड अप कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल आएगा? उसकी प्राइस निकल आएगी। ओके, हाउ वी कैलकुलेट, ये आपके सामने एक एग्जांपल में डिटरमिन करता हूं है, जिससे हम कैलकुलेट करते हैं। जूली मिलर वांट्स टू डिटरमिन द yield to maturity, YTM, yield to maturity for an issue of outstanding bond at a basket wonder. Basket wonder has an issue of 10% annual coupon bond with 15 years left to maturity. The bond have a current market price of $1250. What is the YTM? आपके माइंड में हो कि मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पे बात कर रहा हूँ। चलिए हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ एक बांड के लिए निकालते हैं। एक कंपनी है, उसका बांड है जिसका कूपन रेट एनुअल 10% है और उसकी मेच्योरिटी लाइफ जो है, लाइफ टू मेच्योरिटी वो 15 ईयर है, और करंटली ये मार्केट में बिक रहा है, खरीदा जा रहा है, फरोख्त हो रहा है $1250 का। सो बताएं, अगर मैं इसको $1250 पे बाय करता हूं तो मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा, मेरा YTM क्या होगा? सो बेस्ड ऑन दीज इंफॉर्मेशन, ये जो आप समझ मेरे सामने है, डिस्प्ले है, हम इससे क्या करेंगे? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कैलकुलेट करेंगे कि क्या पोजीशन बनती है। नाउ लेट्स सी YTM सोल्यूशन कैसे करेंगे।
$1250 को हम इज इक्वल टू $100 into present value interest factor 9% into 15 plus 1000 to present value interest 9% into 50. सो हम यहाँ टेबल नंबर 4 में से वैल्यू ले लेंगे, 15 ईयर पे 9% की वैल्यू ले लेंगे और यहाँ पर हम 15 ईयर पे 9% की वैल्यू ले लेंगे, उधर पुट कर लेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू बनती है 8.061 फ्रॉम टेबल नंबर 4 और ये फ्रॉम टेबल नंबर 2 की वैल्यू बनती है 0.26। सो हमने इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ और इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, दोनों को एड अप कर लिया, दैट इज 1081। इट मींस हमारे पास अगर हम 9% अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा YTM 9% है, मैंने इस पे ट्राई किया तो पता चला नहीं ये रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर ये रेट होता तो 1080 वैल्यू निकलती, हालांकि वैल्यू कितनी है 1250 वैल्यू है। तो हम क्या करते हैं, इससे कम रेट लेते हैं। नाउ आई एम ट्राइंग फॉर द 7%। पहले मैंने 9% पे निकाला जो कि 1250 से वैल्यू कम आई है। अब मैं रेट को कम कर लूंगा सो दैट कि मैं वैल्यू ज्यादा निकाल दूं। सो 7% 15 ईयर और 7% 15 ईयर पे वैल्यूज निकाली टेबल 4 से और टेबल नंबर 2 से, इसमें पुट कर दिया तो आंसर आया 1272, $1272.8। इट मीन रेट इज टू लो। अब मुझे दो चीजों का पता चल गया कि ये रेट 9% से कम है और 7% से ज्यादा है। इट मीन इट लाइज समवट बिटवीन 7% एंड 9%। सो मैं कैसे मालूम करूंगा, इसके लिए हम इंटरपोलेशन का फार्मूला लगा देंगे, इंटरपोलेट कर लेंगे कि 7% की वैल्यू हमारे पास बनती है हाई रेट माइनस लो रेट। हाई रेट मैंने कितना लिया था 9%, लो रेट कितना लिया था 7%, डिफरेंस कितना आ रहा है 0.02। सो 0.02 मैंने यहां पुट कर दिया। हाउ इट कम्स फ्रॉम हाई रेट माइनस लो रेट मल्टीप्लाइड बाय लो रेट पे IRR कितना बनता है और हाई रेट पे, तो लो रेट पे IRR बनता है 1273 और हाई रेट पे बनता है 1081 और जो मुझे रिक्वायर्ड है दैट इज 1250। कितना आता है 1250। सो इन दोनों का मैंने डिफरेंस निकाला, 1273 में से 1250 माइनस कर दिया, डिफरेंस आया 23 और 1273 और 1081 का डिफरेंस आता है 192 आता है, राइट। सो मैंने इस इन दोनों का डिफरेंस ले लिया और इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस $23 आता है। 1273 और 180 का 1081 का डिफरेंस आता है 191। सो सिंपली आई विल पुट x divided by 0.02 is equal to 23 divided by 192। सो x को इस तरफ रहने दें, इसको अगर मैं x इसी तरफ रहने दूं तो ये आ जाएगा 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 192। सो x इज इक्वल टू 0.0024। सो 0.0024 को हम लोअर रेट जो मैंने लिया था 0.07, इसमें क्या कर दूंगा 8 कर दूंगा। सो 0.07 में 0.0024 जब मैंने 8 कर दिया, the answer is 0.0724 or 7.24%। It means मेरा YTM कितना है, अगर मैं इस बॉन्ड को $1250 का बाय करता हूं, एक्चुअली आई एम गोइंग टू अर्न 7.24% रिटर्न। Actually I am earning 7.24% return. This is the required rate of return or yield to maturity. ये मैंने कैलकुलेट किया, आपके सामने जो डिस्प्ले है नजर आ रहा है। दिस कैलकुलेशन डन बेस्ड ऑन द इंटरपोलेशन फार्मूला। लेटर ऑन आई विल एक्सप्लेन ऑन व्हाइट बोर्ड के इंटरपोलेशन को हम टेबल के जरिए कैसे सॉल्व करते हैं, उसको हम पूरा मैथमेटिकली कैलकुलेशन कैसे करेंगे आई विल एक्सप्लेन। यहाँ पावर पॉइंट जरा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया है, राइट। सेमी एनुअल पे मैं नहीं जाता। ओके, एक लास्ट चीज के बॉन्ड का प्राइस टू यील्ड रिलेशनशिप क्या बनता है, बॉन्ड प्राइस यील्ड रिलेशनशिप क्या बनता है। हम जानते हैं कि कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि डिस्काउंट रेट पे फरोख्त होते हैं, मींस जो उसकी पार वैल्यू होती है प्राइस उससे कम लगाई जाती है। फॉर एग्जांपल पार वैल्यू बॉन्ड की 1000 है और मार्केट में 800 की बिक रही है, मींस इट इज सोल्ड ऑन द डिस्काउंट रेट। Few bonds are sold and traded at a premium. How? 1000 इसकी पार वैल्यू है और मार्केट में करंटली बिक रहा है 1100 या 1200 के लिए। इट मींस बॉन्ड इज ट्रेडिंग एट द प्रीमियम वैल्यू। Some bonds are traded at the par value. That is called par bond.
पार बॉन्ड क्या है, 1000 उसकी फेस वैल्यू है और 1000 पे ही वो क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है. So bonds either traded at discount or traded at premium or issued at a par, whatever जो भी है, इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या बनता है, यील्ड्स का और इसका. ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. यहाँ पे हम बॉन्ड की प्राइस ले लेते हैं वर्टिकल एक्सेस पे और हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे हम मार्केट रेट, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यानी कूपन रेट ले लेते हैं. सो 2%, 4%, 6%, 8% एंड 18% अब तक यहाँ तक हमारे पास आ जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास मुख्तलिफ प्राइसेस हैं. तो जिस पॉइंट पर ये बॉन्ड्स की आपस में इंटरसेक्ट हो जाता है, जिस रेट पर पार वैल्यू 5 ईयर के लिए और 15 ईयर के लिए इंटरसेक्ट हो जाता है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है वो जिस रेट पे होता है, ये रेट हमारा कूपन रेट डिटरमिन हो जाता है उस बॉन्ड के लिए. जब ये बॉन्ड, when the interest rate rises then the market required rate of return also rises and the bond prices falls. जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो मार्केट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज हो जाता है और जिससे प्राइसेस क्या हो जाती हैं, डाउन हो जाती है. फॉर एग्जांपल आजकल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस पेंडेमिक सिचुएशन में, कोविड-19 की पोजीशन में, जो इंटरेस्ट रेट था, बैंक रेट था 13.2% से गिराकर 4.45 बेस पॉइंट गिराकर 8.9 यानी 9% तक लेके आ गए. यानी इंटरेस्ट रेट क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया. जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज हो गया तो मार्केट में इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा. जब ये इंक्रीज हो जाएंगे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी डिक्रीज हो जाएंगे, तो मार्केट में शेयर की प्राइसेस या बॉन्ड्स की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, अप हो जाएंगी. सो नाउ डेज बॉन्ड की प्राइसेस अप इसलिए हो गई हैं कि मार्केट में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या हो गया, डाउन चला गया. सो ये इस पे मैं खैर लेटर ऑन बात करूंगा कि इसको हम कैसे डिस्कस करेंगे. Anyhow, I will discuss later on these things in any coming lecture inshallah. यहाँ तक अगर आपके जहन में कोई बात है, I have only 8 minutes left क्योंकि बिफोर ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट करे तो हम आपस में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं. आपकी तरफ से कोई डिस्कशन पॉइंट है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं टेकिंग इन द स्क्रीन. जी यस प्लीज. एनी ऑफ वन हैव एनी क्वेश्चंस, कोई बात आपके माइंड में है तो आप स्क्रीन पे आकर बात कर सकते हैं. जी, if you have any question regarding valuation of bond, valuation of preferred share, valuation of common stock and any other relevant question related to this the valuation topic, you may ask please. स्क्रीन में बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं मुझे. जी जी, अब्दुल वहाब, जोहा, महानूर etc. if you have any question you may ask now please. आपको समझ आ रही है अब्दुल वहाब? अब्दुल वहाब जी सर बोले. अपना कैमरा ऑन कर लीजिएगा. जी जी. सर मैं मस्जिद जा रहा हूँ, रास्ते में. अच्छा 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 अच्छा, नमाज का टाइम भी हो रहा है. इट्स ओके ओके. सो इंशाल्लाह हम चले क्लास यही पे खत्म कर लेते हैं, नमाज की तैयारी कर लेते हैं इंशाल्लाह. नमाज के बाद कल ठीक है सर. अब नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह मंडे को होगी, मंडे को डिस्कस करेंगे. ओके, अल्लाह ओके सर, हाफिज, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज.